اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین وان اعبدونی ھذا صراط مستقیم۔ محترم ناظرین و ناظرات، المہدی ٹی وی کے پروگرام صراط مستقیم کی 54ویں قسط کے ساتھ آپ کا میزبان سخاوت حسین سندرالوی حاضر خدمت ہے۔ سب سے پہلے تو میں آپ تمام حضرات و خواتین کو سنت رسول پہ چلتے ہوئے سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کی سعادت پیش کرتا ہوں۔ ثانیاً دعا گو ہوں، آج 21 رجب ہے اور جب یہ نشریات ریپیٹ ہوں گی تو 22 رجب ہو چکی ہوگی۔ یہ 22 رجب جوائفل دن ہے، خوشی کا دن ہے، مسرت کا دن ہے، عید کا دن ہے۔ 22 رجب کو 60 ہجری میں مولا علی علیہ السلام کا قاتل فی النار ہوا، جو امیر المومنین کا بھی قاتل تھا، ام المومنین کا بھی قاتل تھا، کیونکہ ظالموں کے بنی امیہ کے مظالم کی وجہ سے ہمارے ائمہ امام حسین علیہ السلام، امام زین العابدین علیہ السلام، امام محمد باقر علیہ السلام حالات کی وجہ سے اور مظالم کی وجہ سے اس بڑی عیدوں میں سے ایک بڑی عید کو منا نہ سکے۔ سب سے پہلے اس عید کو منایا امام جعفر صادق علیہ السلام۔ اسی لیے 22 رجب کی عید کو جو کنڈوں والی عید ہے، نیاز امام جعفر صادق علیہ السلام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ نظر امام بھی اسی کو کہتے ہیں اور نیاز بھی اسی کو کہتے ہیں۔ نظر عربی میں بھی استعمال ہوتا ہے، VOW واو کے معنی میں۔ قرآن میں بھی ہے رب انی نظرت لک ما فی بطنی محررہ، نظر کی تھی مریم کی ماں نے کہ مجھے جو بیٹا ملے گا میں اسے بیت المقدس کا متولی بناؤں گی۔ وہ نظر پوری ہوئی مریم کی صورت میں کہ مریم کی نسل سے، مریم کا بیٹا مریم کے رحم سے، مریم کے شکم سے آنے والا عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ متولی بنا۔ تو نظر حکم قرآن ہے۔ آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں نے نظر کی تھی، فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ۔ حابیل علیہ السلام کی، جو نبی بھی تھے، فرزند آدم تھے، نظر قبول ہو گئی تھی، قابیل کی قبول نہیں ہوئی، تو قابیل نے قتل کر دیا حابیل کو۔ تو نظر کوئی کنٹروورشل ایشو نہیں ہے۔ حضور کے دور میں بھی نظر ہوتی تھی اور شریعت محمدی میں نظر کا باقاعدہ کفارہ بھی موجود ہے۔ تو اس کا مطلب یہ شریعت میں اس کی حیثیت تھی، تبھی تو اس کا کفارہ ہوتا ہے اگر کوئی نظر پوری نہ کرے۔ تو اسی کو منت بھی کہا جاتا ہے، اسی کو نیاز بھی کہا جاتا ہے۔ ڈیفرنٹ ایسپیکٹس میں معانی بدل جاتے ہیں۔ ہم جو کنڈوں کی نیاز، کنڈے اصل میں وہ برتن ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے پیالے، ہندوستان میں ان کو کنڈے کہا جاتا ہے کیونکہ ہندوستان میں اس عید کو بڑی پذیرائی ملی، اور اس کی میں وجہ ابھی عرض کروں گا۔ تو وہ جو چھوٹے چھوٹے پیالے ہوتے تھے جن میں خواتین، ہماری بزرگ خواتین، نیاز امام جعفر صادق علیہ السلام کا پکا ہوا کھانا رکھتی تھی، خاص طور پہ میٹھا،
उसको कूंडे कहते हैं, तो ये कूंडों वाली ईद मशहूर हो गई। ये शिया सुन्नी सब मिलके मनाते हैं, इसलिए कि अमीरुल मोमिनीन के कातिल को न शिया पसंद करते हैं, उम्मुल मोमिनीन के कातिल को न सुन्नी पसंद करते हैं। तो जब उस मनहूस की जी हाँ जहन्नम जाने का वक्त आया तो सारे मुसलमान उस दिन को ईद मनाते हैं। यह है दरअसल कूंडों वाली ईद, यह है दरअसल नियाज़े इमाम जाफर सादिक, नजर इमाम जाफर सादिक। अब इसमें दो तीन सवालात हैं। पहला सवाल तो यह पैदा होता है कि ईरान इराक में शिया कसरत से रहते हैं, वहां इस ईद की इतनी पजीराई नहीं है जितनी कि हिंदुस्तान पाकिस्तान में। उसकी क्या वजह है खास? ये एक बहुत ही जेन्युइन सवाल है। इसका जवाब देने से पहले मैं ये अर्ज करूंगा कि जो नवी की ईद है, जो मर्गे उमर साद की ईद है, जिस वक्त इंतकाम में खून हुसैन मुकम्मल हुआ 9 रबीउल अव्वल, वो भी मैंने ईरान इराक में ज्यादा नहीं देखी, बहुत कम मनाई जाती है। होती है हफलत ज़हरा के नाम से इराक में होती है, मगर बड़े लेवल पे नहीं। शादमानी फातिमे होती है, ईद फातिमे, ईद ज़हरा मनाई जाती है, मगर बहुत कम ईरान में भी। इसका जवाब यह है क्योंकि ईरान इराक में अक्सरियत शिया है, उनकी कोई अपोजिशन नहीं है, जिसकी वजह से उनको ये ईदें वो बड़े मनाएं या छोटे लेवल पे मनाएं कोई फर्क नहीं पड़ता। हम लोग क्योंकि बहुत दूर हैं हिंदुस्तान पाकिस्तान वाले, तो आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ हत्ता के आज़ादारी भी जिस जोशो खरोश से हमारे यहाँ होती है, ऐसे वहां नहीं होती। इसका मतलब ये हरगिज नहीं कि वहां आज़ादारी वो लोग करते नहीं, उनको अपोजिशन ना होने की वजह से उस जोश की जरूरत नहीं होती जो हमें होती है। ये इसकी एक वजह अर्ज कर दी, ताकि बहुत सारे हमारे लोग बेवकूफ़ाना हरकतें भी करते हैं, कहते हैं जब ईरान इराक में नहीं तो हम क्यों मनाएं। तो ये उनका जवाब भी आ गया कि ईरान इराक में मुनाजरे का रवाज बहुत कम है। मुनाजरे की जो बड़ी बड़ी किताबें हैं, अगरचे सैयद शरफुद्दीन की किताब भी मौजूद है, आप जानते हैं अल मुराजात, और शबह पेशावर जो फारसी की किताब है, मगर वो भी पेशावर में मुनाजरा हुआ है। ज्यादातर मुनाजरे पाकिस्तान हिंदुस्तान में क्यों होते हैं, उसकी भी ये वजह है कि क्योंकि अपोजिशन जहां होती है वहां पर ज्यादा तनकीद होती है। अभी मैं छोटी सी मिसाल दे रहा हूं, मुफ्ती नईम ने ये 4 दिन पहले फतवा दिया है, ये आगा जानते हैं, आज थोड़ा आगा सजाद के वो इलाके का है, एहतियात से बताएंगे आगा, जरा एहतियात से बहुत डिटेल से नहीं बताना, आ जाइए ना करीब। तो ये पेशावर का है, मुफ्ती नईम पेशावर का है, आगा ने हमें बताया, हमें तो पता नहीं था। इसने अब ये फतवा दिया है, भोंडा फतवा, कि इमाम अली खाने काबा में पैदा नहीं हुए। इस फतवे के बाद ना अरब के शियों पे इतना असर हुआ होगा, ना ईरान वालों पे, मगर पाकिस्तानी हिंदुस्तानी बिल्कुल मुस्तरिब हो जाएंगे, क्योंकि हम लोग दुश्मनों में घिरे हुए। असल इसकी वजह ये है। तो ये एक गलतफहमी भी दूर हो गई। अब ये बताइए कि एक तो मुबारक देनी चाहिए इस दिन की। इस साल 1436 हिजरी में कल का दिन है, यानी मंडे का दिन है, मुबारक देनी चाहिए। 11 मई को इस साल आ रहा है, ज़ाहिर है डेट्स बदल जाती हैं अंग्रेजी की, 22 रजब नहीं कभी बदलेगी, मुबारकबाद दें। इसका तरीका यह है कि फजर की नमाज के बाद नमाजियों को नाश्ता कराना होता है। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने सुहूर कराया, नाश्ता कराया, ब्रेकफास्ट। मस्जिद के नमाजियों से कहा था कि आप मेरे साथ चले मेरे घर में, आज मैंने ईद का खाना पकाया है। वहां से ये नियाज़े इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम मशहूर। तो एक तो मैं ये गुजारिश करूंगा कि नमाजियों को खिलाना चाहिए, बेनमाजों को बेशक ना खिलाएं। इमाम की सुन्नत नमाजियों को खिलाने की। दूसरी बात यह अर्ज करूंगा कि फजर के बाद असल तो सुन्नत यह है कि फजर के बाद 22 फजर के बाद और रात में खाना पकाया जाए, क्योंकि इमाम ने भी और इमाम के अहले खाना ने भी रात को पकाया था, और बावजू होके खाना पकाए, बावजू होके खाना पकाना चाहिए। वो खवातीन जो किसी वजह से मजबूर हों तो वो अगरचे बाकी
शरीयत की चीजें अंजाम न भी दे रही हों तो न्याज के खाने के लिए या तैयार करने के लिए उनको कम से कम वुजू कर लेना चाहिए। ये थोड़ी सी जो बैकग्राउंड है ये जरी आबदी के सवाल पर जो यहाँ तशरीफ फरमा है। हमने आज ये छोटा सा प्रोग्राम कर लिया ताकि इनके जो हमसिन लोग हैं, जो जवान बच्चे हैं, उनको भी पता होना चाहिए 22 रजब is the day of death of killer of Imam Ali. That is why we celebrate this great Eid with the joy, as our 6th Imam started it. Our other Imams before him could not celebrate due to critical situation and oppression of Umayyads. I will request and urge all Shia and Sunni brothers and sisters that you, all of you, please celebrate this Eid with joy, with entertainment, and with love of Imam Ali and hatred with the killer of Imam Ali. That is why we are gathered here today annually at Al Mahdi Center, Brooklyn, New York. Our sisters and brothers, they all bring the food and we celebrate the Sunday before usually or Sunday after, avoiding the dates of martyrdom of Babul Murad and date of departure of Imam Hussain. And I will urge all of you, please celebrate this day, but do not make this day on 25th Rajab or Rajab. These two dates are dates of sadness, sorrows, and weeping and crying. May Allah make this Eid day of blessing for all of you and for all of us. आज हमारे यहाँ पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं शुएब आबदी साहब, जो शायर अहले बैत भी हैं, और इनके दौलत खाने पे बुध के दिन बाबुल मुराद बाबुल हवाइज इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की मजलिस भी मुनक़िद हो रही है। आप तमाम हजरात और ख़वातीन जो न्यूयॉर्क में, न्यू जर्सी में रहते हैं, दावत है आपको मगरिब के बाद इंशाअल्लाह। ये मरकजी मजलिस है न्यूयॉर्क की इस साल की, क्योंकि एग्जैक्ट शब शहादत में मुनक़िद हो रही है। तो मैं, मेरे साथ इस आज के प्रोग्राम में आगा मुख्तार हुसैन भी ज्वाइन कर रहे हैं, जो मेरी जगह नमाज भी पढ़ाते हैं, असिस्टेंट भी हैं, यहाँ शागिर्द भी हैं, हौज़ इल्मिया के तालिब इल्म भी हैं, और इनके साथ नूर भी बैठे हैं, अली मौजूद हैं, सैयद वाहिद हैं, नादे अली हैं, माशाअल्लाह। और आज के इस प्रोग्राम में शुएब आबदी साहब, जो शजी आबदी के लक़ब से मुलक़ब हैं, इनके फर्जंद जरी आबदी तशरीफ़ रखते हैं, जो बड़े ही जवान साले हैं और यूथ में माशाअल्लाह इनकी बड़ी खिदमत है। और उनके साथ आज़ाद गिलानी तशरीफ़ रखते हैं, और उनके साथ ही हमारे मुतवल्ली आगा सैयद सजाद अली शाह जाफरी आफ पेशावर, जिनके महल्लेदार हैं मुफ्ती नईम, जिसने अभी ये मोंगी मारी है। तो मैं सबसे पहले आज के प्रोग्राम में, अगर आप कॉल करना चाहें तो हम लाइव कॉल भी ले लेंगे चंद मिनट के लिए, 718-675-6987। बेसिकली आज जो संडे स्कूल है, इसी को ही संडे स्कूल समझ लीजिए। आज हम ड्रॉप कर देंगे संडे स्कूल को, ताकि हम संडे स्कूल के बच्चों को और तमाम ऑडियंस को ये बता सकें कि ये जो 22 रजब की ईद है, कुंडो वाली, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की नजर न्याज वाली, ये क्या है। इस दिन मौला अली का सबसे बड़ा दुश्मन, जिसने मौला अली को कत्ल करवाया था और मौला अली पर सब्बो शत्म शुरू करवाया था, कुनूत में लोगों से कहता था कि मौला अली पे सब्बो शत्म करो, और बहुत लोगों को कत्ल करवाया। ये बेसिकली उसकी मर्ग की खुशी की ईद है 22 रजब। अल्लाह 22 रजब के सदके में मौला अली की मोहब्बत हम सब के दिलों में मौजन फरमाए, और मौला अली के कातिलों और दुश्मनों की नफरत हमारे दिलों में मौजन फरमाए। दुनिया और आखिरत में मौला अली के लिवाउल हम्द के साए में, दुनिया में परचम अब्बास के साए में, आखिरत में लिवाउल हम्द मौला कायनात के साए में अल्लाह हमें जगह नसीब फरमाए। बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। सबसे पहले मैं आज के प्रोग्राम में दावत दूंगा हमारे सैयद शुएब आबदी साहब को, कि वो
آج کے اس پروگرام میں جو نیاز امام کے بارے میں ہو رہا ہے کچھ ارشاد فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبلہ اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ کی کاوشیں، آپ کی یہ جو ایفرٹس ہیں، جس طرح سے آپ سب چیزیں مینیج کرتے ہیں، اللہ آپ کو، یہ آپ پر امام زمان علیہ السلام کو خاص عنایت ہے آپ پہ، اور تمام سننے والوں کو، تمام مولا کائنات کے ماننے والوں کو یہ خوشی مبارک ہو۔ اور ایک چیز میں اور بتاؤں، قبلہ میرے شہید بھائی سید شجاع عباس آبدی نے اس کا بہت جو اس کا آخری اہتمام تھا، وہ اس نے اس کی مٹھائی لے کر آیا تھا، اور اس کی ہاں، اور اس کے بعد پھر اس کو جو اس نے خبر میں جو اس کو جو مٹی ملی ہے وہ امام موسی کاظم علیہ السلام کے تاریخ پہ، اور اللہ شجاع کے اور تمام عزاداران امام حسین علیہ السلام کے درجات کو بلند کرے۔ اگر آپ کی اجازت ہو قبلہ، تو میں نے ایک منقبت ہے امیر المومنین کی شان میں، اس کے چند اشعار۔ کہتا ہوں، جب ثنائے مرتضیٰ میں زندگانی ہو گئی، جب ثنائے مرتضیٰ میں زندگانی ہو گئی، واہ خدا کیسی انداز بیانی ہو گئی، اور چن رہا تھا لفظ جو میں مختار بھائی چن رہا تھا لفظ جو میں مد حیدر کے لیے، نور کے لفظوں کی دیکھو ایک روانی ہو گئی، اور آمد حیدر جو رکھنا تھی خدا کو بے مثال، در بنے کعبے میں ایسے ایک نشانی ہو گئی، نور حیدر سے چمک اٹھا ہے کیسا باخدا، خانہ کعبہ کی کیسی ذوفشانی ہو گئی۔ اور شیخ کہتا ہوں، پھر ملے کعبے میں نور مصطفیٰ نور علی، ہاں پھر ملے کعبے میں نور مصطفیٰ نور علی، نور واحد کی یوں پھر سے ترجمانی ہو گئی، اور یوں محمد نے پکارا حیدر کرار کو، قبلہ یہ کہتا ہوں، یوں محمد نے پکارا حیدر کرار کو، یہ صدا ایک نشان کامرانی ہو گئی، اور اس دفعہ یہ کیا ملا خیبر میں حیدر کو علم، کچھ تڑپتوں کے لیے یہ ناگہانی ہو گئی، اور کہہ گئے جو دیکھیے کافی ہم کو بس کتاب، بن علی کے بعد ناممکن نبانی ہو گئی، کیوں بلا بیٹھے مسلمان آخری خطبہ رسول، کیا سمجھتے تھے کہیں آیت پرانی ہو گئی، اور اس طرح گزرے مظالم مصطفیٰ کی آل پر، شرم سے تاریخ مسلم پانی پانی ہو گئی۔ اور یہ قبلہ مقطع ہے، کہتا ہوں، میں شجاع پہنچا جوارے حضرت شبیر میں، میں شجاع پہنچا جوارے حضرت شبیر میں، قط میری جہاں سے جب کہانی ہو گئی۔ قبلہ اور آپ نے جس طرح سے یہ ان کو جریگ اس پر آپ نے جس طرح سے پورا یہ پروگرام کر دیا، جس طرح سے پورا آپ نے ڈیٹیل میں بتایا، اللہ آپ کو اجرکم اللہ قبلہ۔ بہت شکریہ جناب شعیب آبدی صاحب، المعروف شجی، بہت خوبصورت کلام بھی پیش کیا ہے۔ آج ہم بہت خوش ہیں کہ ہمارے تمام بھائی بہن دنیا بھر میں مشغول ہیں، مصروف ہیں، تیاریاں کر رہے ہیں 22 رجب کی، اور 22 رجب کا دن ہمارے لیے بہت ہی مبارک دن ہے کہ مولا علی کا قاتل دفع دور ہوا، اور بنی امیہ کے لیے یہ دن بڑا کڑا دن تھا۔ ہمارے لیے یہ خوشی کا دن ہے کیونکہ انہوں نے ملائن نے خوشی منائی تھی عاشور کے دن۔ ایک کال لے لیتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ ہم جری آبدی کو بھی شامل کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علیکم السلام، آواز ٹھیک ہے؟ جی فرمائیے بھائی، کیا ہو؟ وہ میں آپ سے ڈسکس کر سکتی، وہ میں آپ سے علیحدہ کال کر سکتی ہوں۔ کوئی بات، آپ مجھے کال کر لیجئے گا آج تقریباً 6 بجے کے بعد، 6 سے 8 کے دوران، اور میرا نمبر لکھ لیں، ٹائپ بھی کر دیں میرا نمبر یہاں، میرے سیل پہ کال کیجئے گا، میں 6 بجے یہاں سے نکل جاؤں گا، میرا وہاں سیل ٹائپ کر دیں 856
266 अच्छा 5786. अगेन ये मेरा सेल नंबर है 8562665786. बहुत शुक्रिया बहन, आज के प्रोग्राम में आप शामिल हुई, आपने हमें एनकरेज किया। अल्लाह आपको ढेर सारी खुशियां नसीब फरमाए। खुदा हाफिज। अब मैं जरी आप जी से कहूंगा कि वो ये जो कूनों वाली ईद है, इस सिलसिले में कोई इजहार ख्याल करना चाहे तो इजहार करें। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। ये this is a very fortunate night for every Muslim, for every person who loves justice, because of course Islam is not limited to only because of course Islam is the religion of humanity and the religion of love and justice. And it is only natural to celebrate the opponent to celebrate the defeat of the opponent of justice, and to support the lovers of those who uphold justice, such as Amir al-Mu'mineen Ali ibn Abi Talib alayhi salam, Muhammad, and of course. And of course, it's very ironic because even in the circle of oppressors, the circle of tyrants, even they celebrate the death amongst themselves, because now it's their turn. Now it's their turn to get power. Now it's their turn to have money and power and wealth and influence over the people. So even they celebrate. So it's very, very ironic if their victims are repressed, if they repress this feeling. And of course this too is a message of peace, because peace is always accompanied with justice, and peace is always inclusive of everything that we do. So when we wake up and we even read the first Surah Fajr, when we say Allahu Akbar, we have to always remember, we always have to remember, we say Bismillahir Rahmanir Rahim. Before that we say A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajeem. So we are distancing ourselves from that first oppressor, and inshallah we will distance ourselves from every single oppressor. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Very well said. Thank you very much, Jerry. अब मैं आगा सजाद अली शाह जाफरी से गुजारिश करूंगा कि ये जो फतवा मुफ्ती नईम ने दिया है, मुफ्ती नईम के फतवा के बारे में बताएं। मुफ्ती नईम ने ये कहा है कि हजरत अली खाने काबा में पैदा नहीं हुए। अव्वल तो खैर ये कोई फतवे की चीज है नहीं। एक कॉल ले लेते हैं, फिर उसके बाद आगा सजाद से कहेंगे, वो थोड़ा इजहार ख्याल करेंगे एहतियात के साथ, जज्बात में बिल्कुल नहीं आना। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाँ, कैसी है समझदार? ठीक हो? जी मैं ठीक हूँ। मैं ये सवाल है कि इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की इस न्याज़ को कुंडे क्यों कहते हैं? बहुत शुक्रिया समन, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। पहले तो मैं मुबारक देता हूँ आपको भी, आपके पेरेंट्स को भी, आपके तमाम रिश्तेदारों को, तमाम कजन्स को, बहन भाइयों को मेरी तरफ से मुबारकबाद कबूल हो। अभी मैं इसका जवाब दे रहा हूँ कि न्याज़ इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम को कूनों की न्याज़ इसलिए कहते हैं कि हमारी वो बुजुर्ग ख़वातीन इंडिया के अंदर जब ये रात के वक्त बावजू होकर बड़ी अकीदत से न्याज़ पका लेती थी, तो जिन प्यालों में उस न्याज़ को रखती थी उन प्यालों को उर्दू में कूंडे कहा जाता था। तो ये कूंडों की न्याज़ मशहूर हो गई, वरना इसका कोई इसके अलावा कोई हिस्टोरिक बैकग्राउंड नहीं है। यानी अगर यही न्याज़ इराक में कही जाएगी तो कूंडों की नहीं कही जाएगी।
क्योंकि वहां जाहिर है कि रवाज नहीं है छोटे छोटे बर्तनों का, तो वो न्याज इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ही इसको कहा जाएगा। इसलिए मैं बड़ा सख्ती से पाबंद हूँ कि जब भी हम किसी को कोई बात करें तो अपने छठे इमाम का नाम जरूर लें, क्योंकि उन्होंने शुरू फरमाई थी। जैसे फिक़े जाफरिया उन्होंने शुरू फरमाई है, जाफरी स्कूल ऑफ थॉट उन्होंने शुरू फरमाया है। ये ईद खास तौर पे इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने शुरू फरमाई है। तो जाहिर है कि इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की ही औलाद से है, आगा सजाद अली शाह जाफरी है। तो उनसे मैं कहूँगा कि आज इस अजीम मौके पे मुफ्ती नईम के बारे में ज़रा बता दें कि जिसने ये भोंडा फतवा दिया है कि मौला अली खाने काबा में पैदा नहीं हुए। बिस्मिल्लाह। ये औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अलमेदी सेंटर ब्रुकलिन से बोल रहा हूँ, आगा सजाद अली शाह। चूँकि मैंने नईम की कोई बयान सुन के बहुत अफसोस हुआ है, और मैं ख़ुद पेशावर का ज़ाती बाशिंदा हूँ और इनको मैं ज़ाती तौर पर बड़े अच्छी तरीके से जानता हूँ। इनके दादा थे अयूब बिनोरी और इसके वालिद थे मतीन बिलोरी, जो कि स्पेयर पार्ट का काम करते थे शोभा बाजार में, समझ गए ना। लेकिन चीज़ ये है कि मुझे बड़े अफसोस से ये बयान देना पड़ता है कि नहीं, मैं तुम्हें पूरे ज़ाती तौर पे जानता हूँ, आमने सामने आपकी और हमारी दुकानें हैं, समझ गए ना। लेकिन तुम्हें याद हो कि तूने आज से 15-20 साल पहले ईद के दिनों में कोई हरकत की थी और तुम्हें अब्दुल अली SHO ने अरेस्ट किया था, और वो किसी तौर पे तुम्हें नहीं छोड़ता था, और हमने तुम्हारी जमानत करा के तुम्हें बाहर निकाला था। और उसके पास तुम्हारे पास उस लड़के के कुछ तस्वीरात भी थे, और ब्लैकमेल तूने उसी को करने की कोशिश की थी। और मैं ये पश्तो में भी दोबारा स्पीच करता हूँ कि तुम्हारे सब पश्तून भाई सुन लें। अलकत पदा खबर तो मैं गौर शाह चता अजमुंगा मौला कायनात पर गलत खबर करेगा तलब अखबल लोख पे जना चस्ता असल लोखेदा जस्ता प्लारम पे जन्म स्ता निकम पे जन्म अयूब बिनोरी मोतीन स्ता प्लार कम चे सैयद ऑटो कंपनी बने मशहूर दी पोशे स्ता से दारुल आसिया गेट के दे पोशो लेका ना। और जो खास तासो खलक पे जन्म और डेर ख पे जन्म चे अब्दुल अली खान SHO ता अख्तर परोजो के अरेस्ट करे हुआ याद दिशी और ब्यात जमानत न शके दे और मुंगा खलको जिस्ता जमानत करेवा लगा पलो का तो पेजना और दोनों मती मकवा और ढेर खराब बशे और इंशाल्लाह जलील ख्वार और जलील बशे और जान ख्याल साता खबरदार ब्या अंदर दे मुतालिक था अजमुंगा अली अलैहि सलाम था दो तरीन बहुना के और तब गशे माजरतों का और बाकायदा तवरदा बयान और के जमाना गलती से हो जाए अजा माफी वारम अल्लाह ताला बनता माफ की जगरदा दोनों को नस्ता कलीमा दा नस्ता मुंज दे नस्ता रोजा दा नस्ता ज़कात दे पोशले मुसलमान है खुलग अली अलैहि सलाम पे जना चे बाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनशीन हजरत अली अलैहि सलाम दे आगा खाना काबा के पैदा दे अजरूए कुरान अजमुंगा डॉक्टर सखावत साहब बयान दर करे दे लगता और खपा और चे दागी से बयान दे चे अली अलैहि सलाम खाने काबा के पैदा दे या ना इस्लाम मुफ्ती महमूदम पे जनी पोशे कना चे अली अलैहि सलाम से शे हुआ और कम जे के पैदा हुआ आगे जो फजल रहमान दे आगम डेर खपे जनी चे हजरत अली अलैहि सलाम सोक न हुआ पोशले और खाना पैदा के खाना काबा के अभी पैदाइश थे और बड़े मेरा बनी तलग अखबल खुला संभाला का और सड़ी तोप खबरें कवा कनीज़ो स्ताद अपलार स्ताद निका पूरे स्ट्रीप दोबारा बयान बकुम और ब्या पखेमान नशे पदा का खबर बांधे पमा खम खुदा पमान। माशाल्लाह ये थे आगा सैयद सजाद अली शाह जाफरी, अल्लाह ताला इनको तूले उम्र दे। इन्होंने बड़ा अच्छा बयान दिया है, इनकी दुकानें भी आमने सामने हैं और आज इन्होंने बहुत अच्छा उसको औकात भी याद कराई है कि गलत हरकत में पकड़ा जाने वाला आज बड़ा मुफ्ती बना फिरता है। अल्लाह ताला उसको गर्क करे और उम्मत मुस्लिमा को समझने की तौफीक दे, ऐसे 2 नंबर के लोगों के फतवों और इस किस्म की बहसों में न पड़े और उनसे इम्प्रेस ना।
आज की जो न्याज अभी बस शुरू होने वाली है अलमारी सेंटर ब्रुकलिन न्यूयॉर्क में, ये आज की न्याज का जो एहतमाम किया है, जिन फैमिलीज ने, मैं उनके नाम ले रहा हूँ और किसी का नाम भूल जाऊं तो मैं माजरत चाहता हूँ। न्यू जर्सी से सैयदा इफ़्फ़त ज़ाहरा साहिबा, उन्होंने इस न्याज में हिस्सा लिया है, और सैयद सखी हुसैन शाह और आगा मुख्तार हुसैन की फैमिली की तरफ से न्याज इस वक्त तक पहुंच चुकी है। यहाँ पर हाजी सलामत अली, रिजवानुल्लाह खान, प्रोफेसर राजा हसन रजा, हुसैन रजा, नजीर चट्टा, खलीफा नासिर, खलीफा नफीसुल हसन, सजाद हुसैन शाह और अख्तर अली शाह, खाबर खाबरी साहिब, राशिद जैदी, अलमदार शाह, जिनके दोनों बच्चे यहाँ मौजूद हैं, और मुतादिद लोगों की तरफ से आज का ये इज्तिमाई न्याज का एहतमाम है। अल्लाह करीम इन तमाम फैमिलीज को जज़ाए खैर मरहमत फरमाए। एक कॉल ले लेते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हेलो, कौन साहब हैं? अलैकुम सलाम। अलैकुम सलाम। मुझे तो कहना था कि प्रोग्राम आ गया क्या? प्रोग्राम शुरू हो चुका है जनाब। प्रोग्राम तो 1 बजे का शुरू है, नमाज बाजमात हुई है, बिल्कुल प्रोग्राम है। आज 6 बजे प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। 5 से 6 दर्स होगा, उससे पहले न्याज है। आप तशरीफ ले आइए, न्याज इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम में तशरीफ ले आइए, न्याज शुरू होने जा रही है। बहुत शुक्रिया जी। मोहतरम नाज़रीन नाज़रात, आज का हमारा ये प्रोग्राम जो सिरात मुस्तकीम नंबर 54 है, एक्सक्लूसिव है आज न्याज इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के लिए। एक कॉल और ले लेते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जनाब किबला मोहतरम जनाब डॉक्टर साहब, मास्टर न्याज बोल। जी मास्टर जी, कैसे हो? ठीक हो? हेलो मास्टर न्याज साहब ठीक हैं? हाँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। डॉक्टर साहब, ये आज जरा थोड़ी सी वजाहत बताएं, क्योंकि काफी लोगों को पता नहीं है कुंडों के न्याज का। जी जी, बहुत शुक्रिया। ये हमारे साथ फोन पे हैदरी मलंग, सना खान मोहम्मद व आले मोहम्मद, मनकबत खान अहले बैत, जनाब मास्टर न्याज अहमद साहब है। मास्टर साहब, पहले तो मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ रजब की, और फिर 22 रजब की भी। जाहिर है कि आज शब ईद होगी, और हमारे शुएब आबदी साहब यहाँ तशरीफ फरमा है। वो आपको रिमाइंड भी करा रहे हैं कि उनके दौलत खाने पे आपने पहुंचना है बुध के दिन। हाँ, आपने वो सवेरे सवेरे वाला कलाम भी पढ़ना है, खास फरमाइश कर रहे हैं। जरी भी और शुएब आबदी साहब भी, दोनों बाप बेटा आपसे फरमाइश कर रहे हैं। बुध के दिन इंशाल्लाह जो मरकजी मजलिस है, तमाम हजरात व खवातीन भी सुन लें। ब्रुकलिन के अंदर ये मजलिस मुनक्किद हो रही है जनाब शुएब आबदी साहब के दौलत खाना पर। और अगर आप आना चाहें तो इसका एड्रेस है 805, नोट कर लें। ये मजलिस बुध के दिन है। हजरत इमाम मूसा काजिम अलैहिस्सलाम की शब शहादत बाबुल हवाइज बाबुल मुराद की मरकजी मजलिस है, और सैयद शुजा अब्बास आबदी शहीद की ये बरसी भी इसी मौके पे है, उनके साले सवाब की भी है। और इस का एड्रेस आप नोट फरमा लें। 805, यहाँ टाइप भी कर दें बेशक, 805 68 स्ट्रीट 68। ये मास्टर न्याज अहमद साहब ने हमसे एक फरमाइश की है, अभी हम उनकी खिदमत में अर्ज करेंगे। 805 68 स्ट्रीट, ब्रुकलिन न्यूयॉर्क 11220। 68 स्ट्रीट का नाम है 68, और निशान है 805, और अपार्टमेंट 4 है, 4 अपार्टमेंट 4 है, 4 नंबर अपार्टमेंट है। 805 में इंशाल्लाह नमाज मगरिबैन बाजमात होगी। आप तमाम हजरात से शिरकत की इस्तदा है। खवातीन के लिए भी पर्दे का एहतमाम है। ये मरकजी मजलिस है बाबुल हवाइज की, शुजा अब्बास शहीद आबदी के इसाले सवाब के लिए भी है। और शुएब आबदी साहब, इनकी बेगम साहिबा, इनके साहिबजादे जरी आबदी और इनकी साहिबजादी और इनके भाई बहन मिलकर इस मजलिस को मुनक्किद कर रहे हैं। अल्लाह करीम आबदी फैमिली के दीगर मरहूमीन की भी शुजा अब्बास आबदी समेत मग़फ़िरत फरमाए, और अल्लाह इस मजलिस को कामयाब और कामरान फरमाए। एक दफा फिर एड्रेस सुन लीजिए, 805 68 68
68 स्ट्रीट, ब्रुकलिन, न्यूयॉर्क 11220, अपार्टमेंट 4। या अगर आप हमारे मस्जिद में 7186756987 पे कॉल करेंगे, मुझे कॉल कर लेंगे, हम आपको मजीद बता देंगे। एक कॉल और ले लेते हैं और धीरे धीरे हमारा प्रोग्राम ये खत्म होने वाला है। चंद मिनट में इंशाल्लाह नियाज हम शुरू करने वाले हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम मौलाना साहब। जी This is Hadia Malik. I would like to say some words on this happy occasion of the death of the biggest enemy of our beloved Imam Ali alayhi salam. Very good. The name of our Imam is still alive in our hearts, but the name of the killer of Imam Ali alayhi salam and the enemies of Ahl Bayt are perished. They must be burning in the hellfire, and all the followers of them will be burning too. Ya Ali Madad. MashaAllah. Very good. Thank you. Well said. Hadia Malik, thank you very much. Hadia Malik shared with us the joy of that day, and she said they used to burn houses of Ahlul Bayt. Let us burn their hearts. Very good, very well said, mashallah. अभी मैं यहाँ करीब आ जाए, मेरी हाफिज मुबशिर आप भी आ जाए करीब आ जाए। अब मैं आगा मुख्तार हुसैन से कहूँगा कि वो चंद मिनट के लिए बयान करें इस अजीम दिन के बारे में। ये नियाज भी लाए हैं और माशाल्लाह ये मदरसतुल कुरान में भी टीचर हैं, बड़ी इनकी खिदमत है। खास तौर पे फजर की नमाज इन्होंने कायम की है, इनकी सेहत के लिए, इनकी बेगम साहिबा बहन रजिया की सेहत के लिए, इनके तीनों बच्चों की सेहत और सलामती और लियाकत काबिलियत के लिए, हसन, नूर और अली के लिए दुआ को, और अल्लाह इनके भाइयों को, 2 भाई इनके जवान दुनिया से चले गए कजन, और इनके वालिदैन के लिए मगफरत की दुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं क़िबला काबा का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे दावत सुखन दी है, और मुबारकबाद पेश करता हूँ तमाम मोमिनीन और मोमिनात को जो देख और सुन रहे हैं, और अपने वक्त के इमाम ज़मान अलैहिस्सलातु वस्सलाम माह मुबारक रजबुल मुरज्जब जो कि अल्लाह का हुर्मत वाला महीना है, इसी में मौला कायनात की जो विलादत बासआदत भी 13 रजबुल मुरज्जब को खास खाना काबा में हुई, और जो मलाउन इस वक्त फतवे दे रहे हैं कि इनकार कर रहे हैं, उसका भी जवाब मैं अर्ज कर रहा हूँ क़िबला की इजाज़त से। और उनके बड़े जो कोशिशें करके थक गए, निशान नहीं मिटा सके खाना काबा से, तो ये बनी उमैया के जो वजीफ़ा खार और नमक खारी का हक अदा कर रहे हैं, ये क्या इसको बुलाएंगे। और ख़ास तौर पे जो मौला की विलादत हुई, तो इसी तरह से उनके जो सियासी हरीफ की दुनिया से रुखसती भी हुई। कुरान करीम की इस आयत की क़िबला आपकी इजाज़त से, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जाल हक व ज़हकल बातिल इन्नल बातिला काना ज़हूका। देखे कुदरत का इंतज़ाम भी। 13 रजबुल मुरज्जब को मौला की आमद हुई है, और 22 को वो जहन्नम वासिल हुआ, जिसका नाम ही वज़न हाविया, जहन्नमी होने की दुनिया में भी और आखिरत में भी। तो इस मौका पे मैंने क़िबला से पहले एक सवाल किया था कि हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि दुश्मन के मरने पे खुशी नहीं करनी चाहिए। वो पंजाबी में कहते हैं कि दुश्मन मरे तो खुशी ना करिए, सजना भी मर जाना। तो मैंने सवाल किया था क़िबला से, तो क़िबला ने उसका मुझे जो जवाब इरशाद फरमाया था वो ये था कि ठीक है, दुनिया में जो हमारे दुश्मन हैं, हमारे ज़ाती दुश्मन हैं, उनके मरने पे खुशी नहीं करनी चाहिए, वाक़ईन नहीं करनी चाहिए, लेकिन जो दुश्मन खुदा, दुश्मन दीन, दुश्मन रसूल है, उसकी मर्ग की खुशी मनाना बिल्कुल आयन दीन है, उसका तकाजा है। दीन और दयानत यही है। हम आज जो सब यहाँ मौजूद हैं, हम वाक़ईन ख़ास तौर पे जो आले मोहम्मद के इरशादात हैं मौला के मासूमीन के, कि हमारे शिया वो हैं जो हमारी खुशी में खुशी और हमारी गमी में गमी मनाते हैं, और इसीलिए हैं कि हम उनके खमीर से हैं। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ और दुआ गो हूँ कि परवरदिगार आलम
ہم سب کو اسی طرح سے ذوق اور شوق کے ساتھ یہ خوشیاں منانے کی توفیق دے. شکریہ. السلام. Noor, you would like to say something? Noor, the student of Hausa and student of Madrasatul Quran, will share with us about this auspicious occasion of Niyaz of Imam Jafar Sadiq, peace be upon him. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. First of all, I would like to congratulate all of you people for like the death of the enemy of Imam Ali alayhi salam. And second, I would like to congratulate you on the Eid, the first day that the infallible Imam Jafar Sadiq alayhi salam was able to commemorate the death of the enemy of Imam Ali alayhi salam. And this is a really happy day, and we should all celebrate it like we celebrate all the Eids. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. I would first like to send our congratulations to the President Imam Zaman alayhi salam, and second to all the believing men and women around the world. And the Kunda of Imam Jafar Sadiq alayhi salam, meaning the Nazr, it means in English a vow, meaning to a spiritual vow. And today we perform it on the 22nd of Rajab. It is a day of Eid because the killer of Imam Ali alayhi salam and al-Mu'mineen died on this day. Imam Sadiq alayhi salam was the first one to celebrate this because the other preceding Imams weren't able to celebrate due to strict political conditions. And the procedure of performing this nazr is to, after Fajr, give food to the Namazis as Imam Sadiq alayhi salam did. And the people that cook the food, meaning the women, they should cook it the night before the 22nd of Rajab. And they should have wudu and then cook the food. And nazr has been mentioned in the Quran at various locations. Hazrat Adam alayhi salam's sons, Habil and Qabil, they performed nazr. Bibi Maryam salamullahi alayha, she also performed nazr. And also Imam Hassan and Imam Hussein alayhi salam also performed this, as in the Surah Dahr, the first 12 verses. It tells the story of the nazr by the Ahlul Bayt. And I would like to just congratulate by concluding that this day is very auspicious for us, and we should go around telling all our brothers in faith that what's the importance behind this, and greet them with joy. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hello. کال ڈراپ ہو گئی, دوبارہ کال کر لیں 718-675-6987 پہ. ہمارے ساتھ اس وقت سید واحد موجود ہیں اور نادی علی, یہ دونوں مبارکباد دینا چاہیں گے, اور پھر حسن چھٹا کچھ نیاز امام جعفر صادق کے بارے میں, اور پھر حافظ مبشر. اس کے ساتھ ہی ہمارا پروگرام مہدی بھی کچھ کہیں گے مبارک کے الفاظ, اور پھر ہم اپنے پروگرام کو اختتام پذیر کریں گے. I congratulate everybody for this education occasion. Congratulations. Smile is good. Smile is good. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. I congratulate everybody who is here, for everybody who
everybody who made the food, and I also congratulate all the previous imams and Imam Azmana alayhi salam. ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ नहीं बात कर रही मैरीलैंड से। हाँ, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे? दुआ दुआ। देखिए, मैंने ये पूछना था कि कुंडों का दिन क्यों मनाया जाता है? शाबाश, बहुत शुक्रिया हूर नईम, अल्लाह आपको सेहत दे, सलामत रहें, खुदा हाफिज। अभी बताता हूँ। हूर नईम पूछ रही मैरीलैंड से, कुंडों का दिन ये अहले सुन्नत से है, और अहले सुन्नत में भी बहुत लोग कुंडे बनाते हैं। आज हमने भी काफ़ी अहले सुन्नत को बुलाया है, और उस दिन आपने देखा कि जो मास्टर नियाज ने अरेंज किया था, जो इंशाअल्लाह बुध के रोज़ सवेरे सवेरे पढ़ेंगे शुएब आबदी साहब के दौलत खाने पे, तो उस दिन बहुत सुन्नी आए थे, पढ़ने वाले, सुनने वाले, नियाज भी अहले सुन्नत लाए थे। हमारा तो पैगाम मोहब्बत का है, शिया सुन्नी सब के लिए। हमारे यहाँ कोई सेक्टेरियनिज्म नहीं है, फिरकावारियत नहीं। जिन फैमिलीज के मैंने नाम लिए थे, मैं उनमें एक नाम और था, दो नाम बल्कि, एक सिस्टर सबा है, शेख महदी की बेगम, उनकी तरफ से भी आज की न्याज है, और जमील शाह साहब भी आज की न्याज में, जमील शाह साहब भी शरीक हैं। तो अब मैं हाफिज मुबश्शिर नज़ीर से कहूँगा कि वो चंद अल्फाज कहे, और फिर खलीफा नफीसुल हसन के साहिबजादे महदी, और बस उसके आज़ाद अगर बोलना चाहेंगे, आज़ाद गिलानी, तो वो भी बोल सकते हैं, आज़ाद गिलानी। अस्सलाम वालेकुम हाफिज सदर आलवी साहब। सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद दूंगा इस स्पेशल ओकेजन पे, और मेरा तल्लक एक सुन्नी फैमिली से है। मेरी वाइफ अहले तशी है। हम लोग इस दिन को बड़े एहतमाम के साथ मनाते हैं। पाकिस्तान में भी हम लोग मनाते आए हैं, इधर भी इंशाल्लाह हम लोग मना रहे हैं, और हम अल महदी सेंटर में बड़े एहतमाम के साथ आते हैं। मेरी वाइफ भी, मैं भी, मगर मुझसे कुछ सुस्ती हो जाए तो मेरी वाइफ इस बात पे ज़ोर देती है कि आपको ज़रूर शामिल होना चाहिए। तो माशाल्लाह यहाँ हमने सुन्नी शिया सब का एक वास्ता तल्लक देखा है। यहाँ कोई ऐसी बात नहीं है। मैं इस बात को भी कंडेम करता हूँ जो मुफ्ती नईम ने की है, वो लानती, उसको ये ऐसा नहीं करना चाहिए था। कोई बंदा इस चीज़ से इनकार नहीं कर सकता कि मौला अली अलैहिस्सलाम की विलादत बासादत खाना काबा में हुई है, और इस बात की दलील भी है कि 3 दिन तक हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के का 3 दिन तक खाना काबा का दरवाज़ा बंद रहा, और 3 दिन बाद हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ तशरीफ़ ले जाते हैं, और वहाँ जब जैसे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरवाज़ा मक्के का दरवाज़ा खाना काबा का दरवाज़ा खुलवाते हैं, तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौला अली को आगे पाते हैं और उनको मुस्कुराते हुए पाते हैं। हम सब का इस बात पे एतकाद है। हम सुन्नी होने के नाते इसका मतलब ये नहीं कि हम अहले बैत की तौहीन करें। हम इस बात को सख्ती से कंडेम करते हैं। थैंक यू वेरी मच। All I have to say is congratulations to everyone, and today's a good day for everyone. Thank you. अस्सलाम वालेकुम, और दुनिया भर के तमाम मोमिनीन को मेरी तरफ से इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम की न्याज का दिन मुबारक हो। चंद अल्फाज सिर्फ इतने कहना चाहूँगा कि जो मेरे भाई ने आज़ाद गिलानी ने अभी तज़किरा किया कि कुछ लोगों ने आज ये प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया है हज़ारों साल बाद, जिसका दुश्मनों ने भी कभी इनकार न किया था, कि अल्लाह ताला के रसूल के सच्चे जानशीन जहां पैदा हुए थे उस जगह से, उस मकाम को हटाकर किसी और जगह का कहा जा रहा है। मैं उन तमाम अफराद से सिर्फ इतना कहूंगा कि ये सब कुछ कहने से पहले थोड़ी सी तहकीकात कर लें। आज से कुछ अर्सा पहले एक वाकया पेश आया था। मेरे भाई आज़ाद गिलानी की तरह एक अहले सुन्नत के आलिम ने उस जगह पर खड़े होकर किसी ने कहा था कि यहाँ पर नहीं है जाए विलादत, इस जगह है, तो उस शख्स ने अपने सजदा का मकाम तब्दील करके कहा था कि अगर अली इधर पैदा हुए थे,
اگر علی ادھر پیدا ہوئے تھے تو کعبہ تو یہ ہے. اگر آپ جائے ولادت تبدیل کریں گے ہم کعبہ تبدیل کر دیں گے, ہم قبلہ تبدیل کر دیں گے. کیوں؟ کیونکہ جناب بلال نے جب اذان دیتے ہوئے اللہ کے رسول سے پوچھا تھا یا رسول اللہ جب بھی میں کہیں اور کھڑا ہو کے اذان دیتا تو کعبہ کی طرف رخ کرتا تھا, آج کہاں رخ کروں؟ تو فرمایا تھا بلال دیکھو میرے بھائی علی کہاں کھڑے ہیں, اس طرف منہ کر کے اذان دو, کیونکہ میرا بھائی علی کعبہ کا بھی قبلہ ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ محترم ناظرین و ناظرات, ہمارا پروگرام صراط مستقیم نمبر 54 جو نیاز امام جعفر صادق علیہ السلام کے بارے میں آج ہم نے کیا جری عابدی کی فرمائش پر, بیسیکلی ان کی تحریک پر یہ پروگرام ہم نے شروع کیا. اور آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ سب بولنے والوں نے بہت ہی اچھی گفتگو کی ہے. سجاد علی شاہ نے تو پشتو کے اندر بھی زبردست گفتگو کی, آزاد گیلانی نے بڑی زبردست گفتگو کی, ماشاءاللہ سید واحد نے, نادر علی نے مبارکباد پیش کی, اور نور نے, علی نے, حسن چٹھا نے, آغا مختار حسین نے, شعیب عابدی نے, جری عابدی نے, خلیفہ صاحب کے بیٹے مہدی نے, حافظ مبشر نذیر نے بہت خوبصورت انداز میں, اور جو کالر آئے ماشاءاللہ ماسٹر نیاز نے کال کی, سمن زہرا نے کال کی, ہدیہ ملک نے کال کی, حور نعیم نے کال کی, اور کچھ بہنیں انہوں نے مجھے میسیجز بھیجے ہیں کہ they are traveling, they cannot call now, they are watching but they cannot call now. اب ہمارا پروگرام اس وقت یہ اختتام پذیر ہو رہا ہے. میں ایک مرتبہ پھر ان فیملیز کے نام لے رہا ہوں جن کی طرف سے آج کی نیاز کا اہتمام ہے. اس پروگرام کے ختم ہوتے ہی نیاز شروع ہو جائے گی. اب 5 بجے تک یہ سلسلہ جاری رہے گا, 5 سے 6 درس ہوگا, اور 6 بجے ٹھیک یہ پروگرام ختم ہو جائے گا. جو حضرات جانا چاہتے ہیں تو جا بھی سکتے ہیں, جن کی مجبوری ہے وہ ضروری نہیں کہ وہ 6 بجے تک رہے نیاز کا پروگرام. البتہ آج کی یہ جری عابدی کی تحریک پر مجھے خیال آیا, آج مجھے بلکہ ذہن میں آ رہا ہے مجھے کہ ایک خیال یہ گزرا تھا کہ 28 رجب جو سفر امام حسین کا دن ہے, ہم اس دن ایک انگلش کی مجلس کرتے ہیں یہاں, کیونکہ ہماری اردو کی مجلس تو ہو رہی ہے اتفاق سے سیٹرڈے کو یہاں پر 9 بجے. تو ہم انشاءاللہ سنڈے سکول کے اندر ہی ایک مجلس کریں گے. تمام بچوں سے میں کہوں گا کہ وہ تیاری کریں. امام حسین علیہ السلام کے جو سربنز ہیں ان میں سے 4 5 6 جملے لکھ کر لے آئیں. میں اس میں مدد کرنے کو تیار ہوں. امام حسین کے ساتھ جو لوگ گئے تھے ان کا نام لکھ کر لے آئیں, جو بیویاں گئی تھیں, جو بچیاں گئی تھیں, جو بچے گئے تھے, کتنے محمل گئے تھے, کتنے لوگ گئے تھے. تو یہ ایک سفر امام حسین کی جو مجلس سے نوٹ کر لیں آپ لوگ. انشاءاللہ یہ جو سنڈے آ رہا ہے 3 بجے انشاءاللہ ٹھیک, اس سے پہلے لیڈیز کی مجلس ہے. پروفیسر باجی شائستہ زہری صاحبہ نے مجھے اطلاع دی ہے کہ انشاءاللہ 3 بجے سے پہلے وہ مجلس ختم ہو جائے گی. تو 3 بجے ہم اپنا سکول شروع کریں گے, اور 5 بجے ٹھیک انشاءاللہ ہم مجلس کریں گے. 5 بجے ٹھیک جی میں ہوں. ہاں میں پھر یہ کہ اینڈ میں پہلے 1 گھنٹہ ہم پورا دیں گے بچوں کو, پورا 1 گھنٹہ. آپ لوگ تیاری کریں, 1 گھنٹہ کم از کم ہم 10 سے 12 لوگ تیاری کریں. سب انگلش میں ہوگا ٹوٹل, اس میں اردو بولنے کی اجازت نہیں ہوگی, تاکہ ہم یہ بھی شروع کریں کہ مہینے میں 2 مہینے میں ایک آدھ بڑی مجلس. یہ اوکیجن بھی ایسا زبردست ہے. اردو کی ہماری مجلس کیونکہ سیٹرڈے کو ہو جائے گی, تو سنڈے کو میں آپ سب کو دعوت دے رہا ہوں. آپ لوگ تقریریں لکھ کر لیں, چھوٹی چھوٹی مختصر تقریریں لکھنی ہیں, اور انشاءاللہ اس کے بعد جو نوحہ پڑھا جائے گا وہ بھی انگلش میں پڑھنا. جری آپ اس کی تیاری کریں. ہاں کوئی نوحہ بہت ہے انٹرنیٹ پہ, یوٹیوب پہ آپ لکھ کر لائیں. پوری مجلس انشاءاللہ مولانا بھی انگلش میں پڑھے پوری مجلس, اور اس کو پہ ہم ٹی وی پہ بار بار نشر کریں گے. ہمارے بچوں کے لیے بھی محرکات سفر کربلا, موٹیوز کیا تھے, کیوں امام حسین گئے, وجہ کیا تھی, ایک زبردست سپیچ بھی ہوگی اور سپیچز بھی ہوں گی. تو اس سلسلے میں یہ آج جری عابدی کی اس تحریک پر میرے خیال گزرا کہ ہم جوان بچوں کے لیے سنڈے کے دن نیکسٹ یعنی سنڈے جو آ رہا ہے, ظاہر آج سنڈے ہے, نیکسٹ سنڈے جو آ رہا ہے ایگزیکٹ وہ سفر امام حسین کا دن ہے. اور امام حسین نے سفر شروع کیا تھا عصر کے وقت, عصر کے وقت ہی ہم مجلس شروع, تو ایک بہترین مجلس ہو جائے گی, دنیا میں لائیو بھی جائے گی. آپ مہدی آپ بھی تیاری کریں, جری بھی تیاری کریں گے, مبشر بھی بچے ہی ہیں,
ये मुबशिर भी तैयारी करेंगे इंशाअल्लाह। और वाहिद को भी आप लिख के दीजिएगा इंशाअल्लाह, नादे अली को भी, नूर को भी इंशाअल्लाह, हसन चट्टा भी, हमारे ये शाजी के बेटे का क्या नाम है, फखर को भी मैं कहूँगा। बच्चों को मैं एनकरेज करूँगा कि वो बच्चियाँ भी, बल्कि लेडीज में बच्चियाँ भी कर सकती हैं, मगर हम यहाँ पर सिर्फ जेंट्स का एहतमाम कर रहे हैं। तो ये बेहतरीन मजलिस हो जाएगी इंशाअल्लाह। इसका हम एक इश्तिहार भी बना देंगे जबरदस्त किस्म की। अब इसी के साथ मैं ये नाम ले लूं, एक जो शब मेराज के बारे में, शब मेराज का, हाँ ये सुन लीजिए, एक ऐलान और सुन लें कि शब मेराज आ रही है जुमा नाइट। तो इंशाअल्लाह जुमा की रात में हम यहाँ आमाल भी करेंगे और जश्न मेराज भी होगा। ये आप जरा प्लीज नोट कर लें। इंशाअल्लाह नमाज मगरिबैन 8:30 पे आगा मुख्तार पढ़ाएंगे। मैं 9 बजे तक पहुंचूंगा क्योंकि मैंने एक जगह से तकरीर करके आना है, न्यू जर्सी से। 9 बजे ठीक हम प्रोग्राम शुरू कर देंगे इंशाअल्लाह। पहले हम जश्न करेंगे, उसके बाद हम आमाल करेंगे और ये सारा सेशन 2 घंटे का होगा, 9 से 11 पाबंदी के साथ। आप तमाम हज़रात और ख़वातीन इस चीज को भी नोट कर लें। मेराज बहुत बड़ी अहम रात है, उसके जो आमाल हैं, और फिर सैटरडे का जो रोजा है उसे आप भूलिएगा नहीं, वो सबसे बड़ा रोजा है। 4 जो बड़े रोजे हैं उसमें सैटरडे का रोजा है इंशाअल्लाह। रोजे की इफ्तारी का इंतजाम यहाँ होगा इंशाअल्लाह उल अज़ीज़। और सैटरडे की नमाज भी आगा मुख्तार पढ़ाएंगे। मैं क्योंकि कहीं और से पढ़ के आऊंगा तो 9 बजे तक इंशाअल्लाह मैं पहुंच जाऊंगा। इफ्तार का यहाँ एहतमाम होगा, सैयद सखी हुसैन शाह की तरफ से पुरतकल्लुफ एहतमाम होगा। आप तमाम हज़रात और ख़वातीन जो ऑनलाइन हमें देख रहे हैं, अलमादी टीवी को देखते भी रहें, अलमादी टीवी से तामुन भी करें। इस अजीम ईद के मौका पर मैं आप तमाम हज़रात और ख़वातीन को मुबारकबाद पेश करता हूँ। जी बिस्मिल्लाह। जरी आप भी कुछ कहना चाहते हैं? इसके साथ ही मैं उन लोगों के नाम लूंगा जिनका आज हिस्सा है आज की नजर में, न्याज में, और फिर ये प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। जरी आप। I just wanted to say that I wanted to appreciate that Maulana Sakawat Hussain Saab gave so much importance to my words and to my questions, and he did a very nice job quenching my thirst for knowledge for this particular subject, and thank you very much. Do you want to say anything? आपने ये प्रोग्राम मुरादा फरमाया, हम आपके बड़े शुक्रगुजार हैं। आपने कॉल्स भी की, बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेजेस भेजे हैं कि हम कॉल नहीं करते, हम शाय हैं, हमें शर्म आती है। कोई बात नहीं, आवाज करते रहे। आज की जो न्याज है जो अभी शुरू होने जा रही है, आगा सजा शुरू कर देंगे, लगाना शुरू कर दें। आज की न्याज के लिए मैं शुक्रगुजार हूँ आगा मुख्तार हुसैन और उनकी बेगम का, उनके बच्चों का, हाजी सलामत अली उनकी बेगम साहिबा और उनके बच्चों का, मास्टर नियाज अहमद, रिजवानुल्लाह खान, सैयदा इफ़्फ़त ज़हरा आप न्यू जर्सी, प्रोफेसर राजा हसन रजा हुसैन रजा, इनकी वालदा, हसन की ज़ौजा और मलिक फैमिली के तमाम अफराद का, सजाद हुसैन शाह साहब जिनकी न्याज जिनकी पहुंच चुकी है, फखर आ चुके हैं लेकर न्याज, फखर की वालदा का भी शुक्रगुजार हूँ, तमाम शाह फैमिली का, खलीफा फैमिली, खलीफा नफीसुल हसन, खलीफा नासिर और इनकी बेगमात का, इनके बच्चों का, सैयद सखी हुसैन शाह उनकी बेगम का, सैयद शुएब आबदी और उनकी बेगम, उनकी साहिबजादी, उनके साहिबजादे हाजी नजीर चट्टा, उनकी बेगम, उनके वालिदैन शरीफैन, उनकी सास, उनके सालों, उनके बच्चों का, बहन सबा शेख मेहदी का, सबा की वालदा का, सैयद अख्तर अली शाह साहब का, सैयदा इफ़्फ़त का, खावर अली खावरी साहब का, राशिद ज़हरी साहब, खावर साहब की बेगम बच्चों, राशिद ज़हरी साहब की बेगम बच्चों, अलमदार शाह जो ऊपर रहते हैं उनकी बेगम फायजा जो आज के इस न्याज में शरीक है। आज के न्याज में शरीक होने वालों में आजाद गिलानी और उनकी बेगम भी है, इनके भी हम शुक्रगुजार हैं। अमीर मोहम्मद खान मलिक भी हैं, औलाद अली शाह साहब की तरफ से भी, हमारे जो कमालिया वाले हैं, क्यों रजी नाम क्या, अली फखर का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं, और उनकी फैमिली का, उनके पेरेंट्स का भी, उनके दीगर अज़ अक़रबा का,
सादात किराम मोमिनीन मोमिनात और सजाद अली शाह के हम बड़े शुक्रगुजार हैं जो सारा इंतजाम कर रहे हैं माशाल्लाह। और है नाम बताएं ना, मियां सफदर साहब जी, मियां सफदर साहब के हम बड़े शुक्रगुजार हैं जो कमारिया वाले, तमाम ब्रुकलिन, स्टेटन आइलैंड, क्वींस के मोमिनीन मोमिनात जिन्होंने आज की न्याज में शिरकत की। ऑलमोस्ट 25-30 फैमिलीज हैं, कुछ के नाम मैं नहीं ले सका हूँ, मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह करीम आप सबको जिंदा और सलामत रखे और इस बड़ी ईद की खुशियों के सदके में अल्लाह ताला हम सबको सीरत मौला कायनात पर चलने की तौफीक अता फरमाए और कातलान मौला कायनात की सीरत से बचने की तौफीक अता फरमाए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मुबारक, खुदा हाफ़िज़। देखा